In the previous classes, we had done this chapter. First, we had summarized. I had summarized this chapter, Poets and Pancakes. Then, in the last class, we had talked about what is the meaning of poets and pancakes. And pancakes here means the brand of the makeup material that used to come in wholesale, मतलब काफी सारा आता था, and which was used from the topmost actress till the lowermost. Then the writer talks about the office boy. In fact, he was not an office boy, he was a man in his 40s who had come over there perhaps to become a director or a film actor or something, but he could not, and hence he was serving as an office boy. वहां पर दूसरा था सुब्बू, मंगलम सुब्बू, who was also considered number 2. According to the writer, he had tailor-made solutions to all the problems. Yet many of the people thought that Subbu was taking advantage of his caste. The next we studied here was about the different kind of people who were there. जैसे वहां पर जो आपका कॉफी टेबल था, दैट्स अ स्मॉल मेस कैंटीन, उसके अंदर जो है लोग बैठते थे, एंड जैसे कहते हैं ना चाय पर चर्चा, in the same manner on the coffee table they would be discussing about the politics. Politics उन दिनों में मतलब होता था only to talk about what we call as गांधी जी, his philosophy. उस दौरान वहां पर जो है देयर वर 2 विजिटर्स इन जेमिनी स्टूडियोज. उनमें से एक था एमआरए द आर्मामेंट, एंड उन्होंने जो है वहां पर दे हैड प्रेजेंटेड द जोथम वैली एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया था कि व्हाट इज द इंग्लिश लिटरेचर अबाउट, उनको कुछ नहीं पता था, बट ये था कि दैट वाज ओनली अ चेंज फॉर देम. हमेशा वहां पर एकदम भीड़ भाड़ रहना, स्लैप मतलब कि जो मेकअप है वो होना, उससे हट कर उनके लिए थोड़ा सा अलग था. देन वी वुड बी स्टडिंग अबाउट हाउ व्हाई वाज द visit of an English poet a mystery in Gemini Studios. ये आपके पेपर का एक कह सकते हो कि this is one of the short question in your paper which had come in the papers. You can see here at the last it is given. Why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery? This is the one which has come in the paper many a times, और इसका मैं आंसर आपको पहले ही बता चुकी हूँ. That is because Gemini Studio basically was dealing only with the Tamil audience, and ये बहुत पुरानी बात है जब अंग्रेजी जो है it was not so common. आज हमारे लिए Netflix है, या today we are having the Prime and all, we are having so many सीरियल्स, वेब सीरीज विच आर अडेप्टेड एंड रीअडेप्टेड. लेकिन उस दिनों में जब सिर्फ लिटरेचर का मतलब लिटरेचर होता था, मूवी वॉज नॉट कंसिडर्ड दैट मच मतलब कि गुड प्रोफेशन. उस वक्त में एक पोएट, वो भी इंग्लिश पोएट का वहां आना वॉज समथिंग वेरी अननेचुरल, क्योंकि लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी. नाउ इट इज, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अ फ्यू मंथ्स लेटर, मतलब दिस इज आपका एमआरए आया था जो आर्मामेंट, उसके बाद उन लोगों ने देखा कि वहां बड़ा सुंदर, मतलब उनको और तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो वो लोग बैकड्रॉप लेते थे वो उनको अच्छा लगा. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras bust, and once again, we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. All they said was he was a poet from England. The only poets the simple Gemini staff knew was Wordsworth, Tennyson, Keats, Shelley, Byron. लेकिन ये कौन था? किसी किसी ने बोला he is not a poet, he is an editor. अब
जो इनका बॉस है, वासन, VASAN, वासन इज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। वो तमिल वीकली उन दिनों में एक अभी भी आती है मैगजीन, अभी भी आती है, आनंद विगड़न। ये मैगजीन कुमुदम और विगड़न करके दो आता था, तो ये उनका एडिटर था। और जब इन्होंने जो है स्क्रॉल किया, नॉट द गूगल, जनरल स्क्रॉल, तो दे सॉ दैट जो ब्रिटिश के वेल नोन एडिटर्स हैं उनमें से तो कोई भी नहीं था ये। तो कौन है ये? Since the top man of the Hindu is the name of the newspaper, were taking the initiative, the surmise was that poet was editor of a daily but not from Manchester, Guardian or London. मतलब इनको थोड़ा सा ये लग रहा था कि जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, हिंदू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर्स इन तमिलनाडु, मनोरमा इज इन केरला एंड हिंदू इज इन, तो इनको लगा कि अगर हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर्स भी इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो कोई बड़ा आदमी होगा, बट इनको समझ नहीं आया। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon वो जो पोएट था वो आया। नाउ हु वाज ही? ही वाज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश। वेरी इंग्लिश मीन्स उसका गेटअप, उसके बात करने का सलीका, very serious and of course very unknown to all of us. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, मतलब दोनों तरफ जो है, पेडेस्टल का मतलब होता है जो खड़े होते हैं, वो वाले फैंस मतलब आधे रखे हुए थे। The boss read out a long speech, उनके वेलकम में उन्होंने स्पीच बोला। It was obvious that he knew too precious little about the poet, मतलब ये भी पता लग रहा था कि वो भी उस पोएट को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। कौन? द बॉस। ही वॉज जस्ट गिविंग अ फॉर्मल वेलकमिंग स्पीच। एक होता है आप किसी को जानते हो और आप स्पीच दे रहे हो, और दूसरा होता है आप किसी को नहीं जानते और स्पीच दे रहे हो। तो नेचुरल है कि जब आप नहीं जानते हो तो आपके वर्ड्स भी मैच नहीं करेंगे। For example, if I have to welcome a guest जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ, about whom I have read, I know him or her personally, तो जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी ऑन द स्टेज तो कुछ मैं अपने वर्ड्स भी यूज करूंगी। I've done it many a times while I was in the school. I used to, I was in the podium, तो मैं कई बार करती थी। लेकिन जिनको हम जानते ही नहीं हैं उनके बारे में हम क्या करें? हमारे पास तो उनके डिपार्टमेंट से लिखा हुआ आ जाता था, ये है, ये है, हम तो सिर्फ उसी को पढ़ के दोबारा से बोलते थे। दैट इज द डिफरेंस। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मतलब जब ये लोग सुन रहे थे तो इनको ये लगा कि जो स्पीच है, बेटा दीज ऑल जो अब हम पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। इनको जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, पेपर्ड मतलब कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे थे जो बार बार वो आ रहा था, फ्रीडम और डेमोक्रेसी। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो वासन है, द हेड ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, वो ये शब्द क्यों यूज कर रहा है। अब then the poet spoke. He could not have addressed a more dazed and silent audience. More dazed and silent मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए सब शांत। No one knew that what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. एक तो वो जो बोल रहा था वो समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वो इंग्लिश, तो उसका जो एक्सेंट था दैट वाज आल्सो कंप्लीटली मतलब कि familiar to all of them. इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। The whole thing lasted about an hour. 1 घंटा इन लोगों ने सुना। Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. All dispersed in utter bafflement मतलब all of them were puzzled. सभी जो है वो puzzled थे कि भाई क्या हुआ है।
What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? यही आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery का आंसर। भाई जेमिनी स्टूडियो उस जमाने में इट वाज अ सिंपल स्टूडियो जहां पर मूवीज बनती थी, मैक्सिमम शूटिंग आपके स्टूडियो के अंदर होती थी। जेमिनी स्टूडियो, एवीएम स्टूडियो, पद्मालया स्टूडियो जी, देन आपका आरके फिल्म स्टूडियो, these are all the very famous, all the famous studios। आरके फिल्म्स आपका राज कपूर का है, चेंबूर। देन एवीएम एंड जेमिनी आपका जो है इट्स इन चेन्नई, एंड पद्मालया आपका इन हैदराबाद। तो ये वो स्टूडियोज होती थी जो दूसरी, जो लोग भी मूवी बनाना चाहते थे वो लोग यहाँ पर आके शूट करते थे। और ऐसे आउट मतलब कि बाहर जाना, बाहर का मतलब होता था एक या दो गानों के लिए, वो भी सिर्फ मेन हीरो हीरोइन जाते थे। आजकल तो वी आर हैविंग अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, देन द ऑल द पीपल आर गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, आउट ऑफ ऑल्सो, बहुत सारे आपके जो शूटिंग है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड। तो ये वो टाइम नहीं था। एंड एक्शन मूवीज अगर तो उन दिनों में बहुत कम बनती थी, मोस्ट ऑफ द मूवीज वर ईदर पेट्रियोटिक और फैमिली ड्रामा। तो अब उनको समझ नहीं आया कि एक इंग्लिश पोएट वहां पर आके क्या कर रहा है। पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। भाई किसकी, कौन इंग्लिश पोएट्री सुनता है? The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet। वो जो पोएट था यानी कि स्टीफन स्पेंडर, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एंड में बताया जाएगा। स्टीफन स्पेंडर वो भी खुद भी पजल्ड था। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है देयर वाज नो रेलेवेंस। उसको समझ आ रहा था कि जो वो बोल रहा था दूसरों को तो समझ ही नहीं आ रहा। His visit remained an unexplained mystery। यही आपके पेपर में आता है। Why was the visit of the Englishman an unexplained mystery? क्योंकि ना तो उसको समझ आ रहा था कि उसने किसको क्या बोला, और ना जिन्होंने सुना था उनको समझ आ रहा था। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius। It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it। ये सारा आपका sarcastic comment लिखा है उसने। Rejection slips don't mean a thing to him। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends on to another editor enclosing postage for the return of manuscript। उसका कहने का मतलब है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी हार इतनी जल्दी नहीं मानते। It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it। मतलब they are very very determined। इसका मतलब है it is for the patient, persistent, persevering drudge का मतलब है they are so determined कि छोटी मोटी चीजें उनको नहीं करती हैं। The rejection doesn't mean वो दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं। अब वो राइटर तो चला गया, लेकिन इनके पास एक और उसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन आया। मतलब उसने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name Encounter। मतलब ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, उसका आप जो हो पढ़ोगे तो यू विल बी, मतलब कि आप जो हो आपको हंसी आ जाएगी। उसका कहने का मतलब है
बिल्कुल बेकार सा पेज, जिस हम लोग क्या करते हैं, वी ओनली रीड द हेडलाइंस, ओ दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, वी डोंट रीड द इनर पार्ट। इनर पार्ट में भी कोई कोने में कोई अगर कोई कुछ लिखा हुआ था, कौन पढ़ता उसको? तो उसने मजाक उड़ाया है कि हिंदू न्यूज़पेपर के एक कोने में एक अनाउंसमेंट था कि देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट। एनकाउंटर करके एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था। अब इनको ये भी नहीं समझ आया कि भाई ये क्या है। द एनकाउंटर वॉजेंट अ नोन कॉमोडिटीज अमंग जेमिनी लिटरेटी। भाई उनको ये भी नहीं पता था ये एनकाउंटर क्या होता है। तो जो ये जो हमारा अशोका मित्रन है, ही वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल। उसने सोचा कि भाई मैं पैसा भेजूंगा, मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी भेजूंगा कंटेस्ट के लिए। उसमें उन जमाने में क्या होता था, हमें अगर कुछ भी भेजते थे ना तो हमें रिटर्न पोस्टेज भी भेजना पड़ता था। तो उसने कहा पहले मैं पढ़ूं तो सही कि एनकाउंटर क्या है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन entrance with no long winded signboards and notice to make you feel you were sneaking into a forbidden area. And there were copies of the encounter. मतलब ये वहां पर गया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, और वहां जाकर इसने देखा कि एनकाउंटर होता क्या है, कौन से न्यूज़पेपर का नाम है। वहां जाकर इसको पता लगा, मतलब इसने जो है वहां पर एनकाउंटर को देखा। देयर वर नंबर ऑफ कॉपीज, लेकिन किसी ने भी पढ़ा नहीं था। ऑलमोस्ट अनटच, मतलब एकदम न्यू न्यूज़पेपर वैसे के वैसे रखे हुए थे उस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. मेरे दिल में घंटी बजने लगी। क्यों? क्योंकि उस एनकाउंटर का जो एडिटर था, ये वही पोएट था जो इनके यहाँ पर आया था, जिनको समझ नहीं आया था कि वो क्यों आया था। I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt he would too be singing the same song at the same time. Long lost brother of Indian film discover each other by singing the same song in the first and the final room. वो हमारे यहाँ होता है ना बिछड़े भाई, एक बहुत फेमस मूवी थी यादों की बारात। उसमें स्टार्टिंग में भी यही गाना आता है, यादों की बारात, और एंडिंग में भी वो कहते हैं ऐसे ना, हमारे यहाँ पर जैसे बिछड़े हुए भाई होते हैं वैसे हम मिल गए। एंड दैट पोएट वाज स्टीफन स्पेंडर। उस पोएट का नाम था स्टीफन स्पेंडर, द सेम पोएट। अब इसको समझ आ गया कि ये वही इंसान है जो हमारे यहाँ पर आया था, who had given a lecture in English which was not understood by anyone. मतलब इसने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। एंड ईयर्स लेटर, मतलब अब इसको समझ आ गया था कि ये वही इंसान है। वो क्यों आया था ये तो नहीं पता लगा, लेकिन ही वॉज द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड एनकाउंटर, जिसको शायद ही इंडियंस जानते थे। इनफैक्ट जो अशोका मित्रन है, द ऑथर ऑफ दिस एक्सर्प्ट, ही हैड गॉन टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी जहां पर वो सब चीजें उसको मिली थी, और इसीलिए इसको पता लगा कि वही है जिसने जो वहां आया था आकर। he had also given the lecture and he was also conducting a story contest. Now Ashoka Mitran was retired, and years later when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. मतलब वो कमाता नहीं था, तो टाइम तो बहुत था, रिटायर्ड था, लेकिन पैसा नहीं था, इसीलिए बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं जाता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मेड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। माउंट रोड इज ये जो आपका है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस एरिया इन चेन्नई, जैसे आपका सीपी है, इट्स जस्ट लाइक कनॉट प्लेस। There was a pile of brand new books for 50 पैसे each. 50 पैसे में बुक्स थी।
एक्चुअली देयर वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिनल नहीं थी, उनके कॉपीज थी. स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. मतलब वहां पर जो वो लगा हुआ था सेल, उसमें लिखा हुआ था कि ये 50th रशियन रेवोल्यूशन को 50 साल पूरे हो गए थे, इसीलिए वो जो बुक्स थी विच वॉज रिलेटेड टू सोशलिज्म उससे रिलेटेड थी, और बच्चों के लिए स्टूडेंट्स एडिशन थी, इसीलिए इट वॉज ऑन लो प्राइस. I paid 50 पैसे and picked up a copy of the book The God That Failed. और ये पेपर में आपका कई बार आता है. एक तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था और ये वाला, what does the God that failed refer to? Please remember the question, what does the God that failed refer to? So this was actually a book which was bought by the narrator for 50 paise. 6 eminent men. 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return. मतलब इसमें 6 eminent means very respectable people, उन्होंने अपने एसेज उसमें, मतलब उस बुक के अंदर 6 एसे थे जिसे 6 अलग अलग लोगों ने लिखा था, एंड दैट वाज मोर रिलेटेड टू कम्युनिज्म. कम्युनिज्म मीन्स एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को जो रिलेट करता है, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न एंड दे कुड नॉट मेक अप, मतलब दैट दे वर अ फेलियर, दे वर अ फेलियर. डिसइल्यूजन मतलब दे वर अ फेलियर. एंड वो था आपका एंड्रे गिड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टल, लुइस फिशर. लुइस फिशर आपका, आप लोग इंडिगो पढ़ चुके हो, एंड स्टीफन स्पेंडर. वो जो 6 दिग्गज लोग थे वो कौन कौन थे, आपके पेपर में ये नहीं आएगा वो 6 लोग कौन थे. आई एम जस्ट टेलिंग यू. सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस, मतलब ये सारे के सारे जो राइटर्स थे बहुत माने हुए थे. सिग्निफिकेंट स्टीफन स्पेंडर, यानी कि तो वही है स्टीफन स्पेंडर, द अनसॉल्व मिस्ट्री. स्टीफन स्पेंडर द एडिटर ऑफ एनकाउंटर, और उसने ही ये बुक लिखी है अबाउट कम्युनिज्म. In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. मतलब उसकी दिमाग की बत्ती जल गई. Mind lit up by a hazy illumination मतलब उसके दिमाग की बत्ती जल गई. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. और यहाँ पर जो God लिखा है ना, this is the metaphor for communism. मतलब शायद वो कम्युनिज्म को प्रमोट करने आया था, but he could not. अगर आप लोग स्टार्टिंग का पढ़ोगे, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो आपका मेकअप स्टूडियो था दैट वाज हेडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटी, एंड दोज कम्युनिटीज वर महाराष्ट्रियंस, गुजरातीज, तमिल्स, एंग्लो इंडियंस, कन्नडिगास. याद है आप लोगों को? तो यहाँ पर वो इसी चीज को एंड कर रहा है कि जिस जेमिनी स्टूडियो को अलग अलग कम्युनिटी ने हेड किया, वहां पर आकर अगर आप कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड ही फेल्ड. सो द गॉड दैट फेल्ड, आपके बुक में आता है, आपके सॉरी पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू. सो द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू द बुक written by 6 eminent essayists. एंड वाई इट वॉज, मतलब कि उसके लिए दैट वॉज एन इल्यूमिनेशन, उसके लिए वो दिमाग की बत्ती क्यों मतलब कि स्टार्ट हुई थी, बिकॉज वो जो अभी तक उसके दिमाग में था कि स्टीफन स्पेंडर नाम का एक इंसान जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वाई ही वॉज देयर इन दैट एरिया,
अब उसको समझ आया कि ही हैड, मतलब बॉस ने उसको बुलाया था यहाँ पर शायद कम्युनिज्म से रिलेट करके कुछ बताने के लिए. सो नाउ द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड. दैट इज द एंटायर चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स. So it starts from how pancakes, a brand of makeup material, came up. Then it explains you about the makeup department, which was on the first floor of Robert Clive's stable. Then it also tells about the different communities that headed the makeup department. Then it tells about how the people living there felt that somewhere the communism was there, like the office boy. Then it tells about the journey of Subbu, who was considered number 2 in Gemini Studios. And then वहां से वो लेकर चलता है to the journey of the poets, the different kinds of poets who had visited over there. और उनमें से एक आपका जो था, that he was Stephen Spender. Earlier people did not know why he was there, लेकिन बाद में जो author था Ashokamitram, he had found out why he was there. So that's the entire chapter, Poets and Pancakes.